بھٹی صاحب اور تمام جو ہے نا یہاں پہ موجود تاجروں کی طرف سے ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی وہاں آئے ہیں ان کو دل کے اظہار کرنے سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم تاجروں کے اطاعت کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. تو میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا صدر شہزاد بھٹی صاحب کے وہ اپنے خیرات کا آغاز کرتے ہیں. تو اس میں اس بعد میٹنگ میں بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو بات نہیں کرے گا جس طرح بھی ہوا فیصلہ کر کے ان کو دعوت دیں گے یا خود چلے جائیں گے. بہت شکریہ ان کا انہوں نے ہمیں بتا دیا بڑی مصروفیت ہے مجھے پتہ ہے اس وقت ان کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی کے بلدان میں ٹیکسی وغیرہ آ رہے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہو چکے ہیں. ہماری معاشی معاملات پہلے جو زیادہ خراب ہیں. اس کے علاوہ جو دکاندار ہے ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو معاشی سسٹم میں بالکل خراب ہو چکا ہے. تو اس میں یہ جو روشنی کی کرن انہوں نے پیدا کیا ہم ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں گے اور جو بھی ان کا ہوگا گائڈ کریں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے کریں گے. اور امید ہے جو باقی تاجر بھی ہیں یہ جو اسٹرائک ہو رہی ہے اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی دکانیں بند رکھیں گے. سب نے یہ ارادہ کیا ہوگا اور اس کا اعادہ بھی کرتے ہیں اور سب سے میں درخواست کروں گا کہ پورے دل کے ساتھ ان کا ساتھ دیں. یہ جس جلسے کے ساتھ اتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور نصیب ملے گا. کچھ نہ بھی ملے لیکن جو انہوں نے تعہد کیا ہے اس کا ہم پورے دل سے مشکور ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو اسٹرائک ہے اس کا یہ جو امید لگا بیٹھے ہیں تاجر جتنے بھی آپ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ ہماری امید میں پورا اترے گے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اس میں خیر و برکت ڈالے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. جناب شہزاد بھٹی صاحب اب میں دعوت خطاب دوں گا سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سردار فضل ریاض ایڈوکیٹ صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پرنٹنگ پریس اور آپ تمام تاجر حضرات جو آج ماتم کے تلے رکھتے ہیں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے خود کے لیے آپ کے ساتھ جو ہمارے شہر میں یا دیگر لوگ جو غریب لوگ ہیں جو آواز نہیں اٹھا سکتے آپ تو تاجر لوگ ہیں کہ کسی حد تک شاید بجلی کے بلات اور دیگر مہنگائی افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کمیونٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ مہنگائی بلات افورڈ نہیں کر سکتے. تو انسان کی پہچان ہی یہی ہے. جانور بھی اپنے لیے کما لیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اپنا خوراک دوسروں کے لیے آواز اٹھانا آپ کی بات ہوتی ہے. تو ہم نے بھی ہمارا الیکشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا فروری میں ہوا تو ہماری جب کیبنٹ بنی تو ہمارے ساتھ جو شہر جو خود آتے تھے ہمارے پاس ہمارے بات کے سلسلے میں وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا جو شہر ہے اس سے کوئی آواز اٹھانے والے ہے نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی آرگنائزیشن ہے. تو کیا تو رجال کی پوزیشن ہے آپ لوگ بنے ہیں یہاں پر تو آپ لوگ وکلا کا فورم بھی ہے وکلا کی بیکنگ بھی ہے تو کوئی آواز اٹھائے. تو اس سلسلے میں مارچ میں ہم نے سب سے پہلے پرائم منسٹر آف خدا کشمیر سردار تنویر ریاض صاحب کو دعوت دی ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ. ان کے سامنے ہم نے میرپور کے مختلف مسائل رکھے جس میں ہمارے ساتھ جو میرپور میں پراپرٹی کا ٹیکس لگایا گیا ہے تقریباً 33% ٹیکس ہے جو پاکستان اسلام آباد جیسے کیپٹل میں بھی یہ ٹیکس لاگو نہیں ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا وعدہ کر کے کہ ہم یہ تمام جو مسائل ہیں وکلا کے مسائل بھی ہم نے ان میں رکھے عوام کے جو شہر کے مسائل تھے وہ بھی رکھے ان کے سامنے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پورے کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ان کی جو انہوں نے تحریک شروع کر دی ان مسائل پہ لیکن بدقسمتی سے ان کی حکومت بن گئی. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اسی لیے لوگوں کی ان سے رشتے ختم ہو گئی ہے کہ وہ واقعی سیاست کو انہوں نے بدنام کر دیا گالی کا نام اس کو دے دیا. ایک شخصیت وعدہ کر کے جاتی ہے لوگوں کے ساتھ دوسرا آنے والا ان تمام وعدوں کو سمجھتا ہے کہ اس کا ذاتی ایجنڈا تھا وہ تمام ختم کر کے کسی نیا کام شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو موجودہ حکومت ہے انوار لاکھ صاحب کا بڑا اچھا ان کے ساتھ ریپوٹیشن تھی بڑی اچھی تھی کہ کرپشن کے خلاف ہیں. لیکن میں ان سے امید کرتا تھا کہ وہ جو تنویر ریاض صاحب نے وعدے کیے میرپور کے لیے وہ مکمل کریں گے لیکن وہ انہوں نے اس کو توجہ ہی نہیں کی اور آگے سے اپنی نئی جو اسکیم شروع کر دی. اور یہاں ان کا وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا اور یہ مسلسل مقصد ایسا ہو رہا ہے. اس کے بعد
अप्रैल में हमने कमर जमान कायरा साहब एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे कश्मीर अफेयर जो पाकिस्तान के, उनको हमने बार में दावत दी। अभी तो गिलास और ज़्यादा महंगे हो गए। हम जो पुराना रेट था उसमें हमने इतराज़ उठाया कि जो मीरपुर के साथ वादे किए गए जब डैम बना, फिर 2003 में अप्रेजिंग हुई, उस हिसाब से हमें गिलास में रिलीफ नहीं दिया जा रहा जो हमारा हक बनता है। तो उनसे हमारे सदर बात मैंने उनको बड़ा अच्छा महसूस किया। वो तमाम उतना ने बड़ा क्लियर किया कि उन्होंने बड़ी दबंग इज्जत जो इखलाक का दायरे ना छोड़ते हुए कमर जमान कह रहा था फिर तमाम हमारे मसाइल जाके थी उनसे बात की। तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको 2 रुपये के हिसाब से जो पाकिस्तान की हुकूमत है जाती है तो 2 रुपये पर यूनिट बिजली हम आपको दे रहे हैं। ये आपकी अपनी हुकूमत है जो इतना मुनाफा ले रही है। और अब आप लोग देखें कि तकरीबन टैक्सीज मिला के कई लोगों को 50 रुपये घरेलू ये यूनिट 50 रुपये पड़ती है, कई यूनिट 40 रुपये पड़ती है, 60-70 तक भी कई लोगों को पड़ती है। तो हमने इसके बाद ये तय किया कि हम तमाम इदारों को हुकूमत को भी हमने खसूस लिखे इस बारे में, पाकिस्तान में भी जो तमाम मुख्तलिफ होते हैं इदारे हैं उन तमाम को हमने खसूस लिखे, लेकिन कोई कानों पर धूना रही। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इजलास बुलाया, मुगला को इस मामले में आगाह किया। तो मुगला ने कहा कि ये अगर बात क्योंकि अदालतों के फैसले यहाँ तक आपको बताऊँ कि हमारे चीफ जस्टिस के यहाँ पे जस्टिस सिराज कियानी साहब बहुत बात की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला किया था रखवा रियाज के हवाले से कि वो आप मुकम्मल करें। उनको बहुत हुए कितना अर्सा हो गया, फैसला हुए सारा साल हो गए हैं लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं। तो अदालतों से भी मुगला ने कहा कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमने भी ये चीज़ सोची। फिर हमने अवाम में निकलने का फैसला किया। मुगला ने ये कहा कि हम फ्रंट लाइन में खड़े होंगे, अगर हुकूमत जोर जबरदस्ती करती है, गोली चलती है तो मुगला सबसे पहले अपने सीने पे खाएंगे, अब कड़ी करती है जो बल्कि यहाँ पे महमूद साहब बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमने नथिया में हमारी मीटिंग रखी, जो रमजान साहब वहाँ पर मीटिंग रखी, तो उन्होंने यहाँ पे मैं उनको राजी तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने वहाँ पे कहा अगर कोई मीटर रीडर यहाँ पे जिस शख्स ने बिजली का बिल जमा नहीं कराया उसको कनेक्शन काटने आया तो वो मेरे से होकर गुजरेगा, उसकी टांगे मैं खुद तोड़ूंगा। ये मैंने बाहर लेके उठाया हुआ है। ये आपको इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर सबसे पहले इस पर स्टैंड लेके अगर कोई इस तरह का काम करता है। हम अपना हक मांग रहे हैं, तमाम हमने कानूनी पहलुओं को देख के निकले, कोई नजायज़ हमारी डिमांड नहीं है। तो वक्त की किल्लत भी आप अपना वक्त किसी निकालना है, जिस फिर आपको इस्लाम पेश करें। अब मैं दावत खिताब दूँगा साबिक़ कस्टोडियन तरीक़ुज़्ज़मान पेट साहब को जो अपने बात कर रहा है। प्रेसिडेंट को जो इस पूरी तहरीक के जो आप घर घर पहुँच चुकी है शरीयत के अंदर एक सजा बनी गई है। अब इसमें अब खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं, आए रोज़ आ चुके सब हो चुके से खबर हो चुके कि ये तहरीक दरअसल अब इस नहज पे पहुँच चुकी है कि अब इससे निमटना उस एतबार से हुकूमती कोई अमला जो है वो इस्तेमाल करना उनके लिए मुमकिन नहीं है कि लोगों को खौफ और हरास में मुबतला कर दिया जाए, क्योंकि बाहर की जो क़यादत है ये कामरान तारिक साहब की ज़ेर क़यादत हम सब चाहते हैं तो सब मुताबिक है और ये दिल से खुलूस नियत से। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद और तारीफ उस वक्त होती है कि जब आप अल्लाह के इस रास्ते में मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए खुलूस नियत से और जज्बे से आप चलते हैं तो अल्लाह ताला की तारीफ और नुसरत भी हासिल होती है। जिस तरह के जंग बदर में ये कहा गया कि हमने फरिश्तों की सूरत में आपको नुसरत दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आहुजारी की कि या अल्लाह आप चूँकि इस दीन को बचाने के लिए जिसका हमने नारा लगाया इसको आप जो है चूँकि तूफान जो है वो ताकत में है तो इसको कैसे तो अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों के जरिए जो है वो मदद दी। तो मैं समझता हूँ आज भी फरिश्ते उतर सकते हैं कतार अंदर के साथ, क्योंकि इसलिए कि ये भी बने नौ इंसान के लिए उनकी बहबूद के लिए फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और कामरान तारिक साहब चूँकि एक इतने दलेर और नडर किस्म के और बेबाक किस्म के लीडर हैं कि मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ना ये झुक सकते हैं, ना कोई ताकत इनको खरीद सकती है और ना किसी की जगह जो कोई सौदाबाजी कर सकते हैं। हाँ मैं रखें क्योंकि इस खित्ते के अंदर बहुत सारी ऐसी तहरीकें और इक़्तिदार होते रहे जिसके नतीजे के बाद जो है वो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि वाकई ये लोग जो है इन्होंने शायद कोई सौदाबाजी कर दी है, शायद इन्होंने प्लाट ले ली है हुकूमत से, शायद ये दस्तबरदार हो गए और लोगों को इस्तेमाल किया है। मैं आपको इस स्टेज से यकीन दिलाना चाहता हूँ अल्लाह को हाजिर जाना जानते कि आप ये क़यादत जो है अपने किसी ज़ाती गर्ज के लिए आप इतना अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने अपने रोज़गार जो है उससे मुतासर हुए। हुक्मरान काम सड़कों पर आना नहीं है,
वकला का काम जो है वो लोगों को इस तरह मोटिवेट करना नहीं है। वकला तो आप लोगों को रिलीफ अदालतों में देते हैं, अपने मुकदमा अदालतों में लड़ते जो है वो आपको फायदा देते हैं, फीसें लेते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि वकला ने जब देखा कि इनके लीडर और इनके नुमाइंदे जो है वोट लेने वाले जो है भाग गए हैं मैदान से, और इस कड़े वक्त में जब लोग जो है वो रो रहे, चीखें मार रहे, हर घर से चीखों की आवाज आ रही है, हर घर से ये नारा लग रहा है कि हम गुर्बत और अफलास की चक्की में जो है किसे जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे कहाँ हैं। कोई किससे पूछे, दीवारों से पूछे नहीं कि आपके नुमाइंदे किधर गए। तो फिर उस वक्त ये कामरान साहब ने ये अज़म किया कि नहीं, मैं इन टुकते हुए लोगों को, मैं इन मजलूम लोगों को जो है इनकी आवका जो है अब मजीद देर जो है उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत में गया। हम लोगों को ये पूरा एतमाद होना चाहिए, इस यकीन के साथ आप पॉइंट्स नंबर पर लिख रहे हैं कि आपका ये काफिला जो है जिसके सरार कामरान तारक है ये कभी भी रास्ते में नहीं रुकेगा। कोई जो है कोई तूफान और आंधी जो है इनके पाँव को मुतज़ल्ज़ल नहीं करेगी, और इंशाअल्लाह साबित करने से अपने अज़्म और इस्तिक़ामत से अल्लाह ताला के फज़ल करम से मंज़िल पर पहुँच के दम लेंगे। और ये यकीन है कि 5 नंबर का अरशद साहब मुझे पूछ रहे थे, 5 नंबर का ये मुज़ाहिरा अल्लाह के फज़ल करम से जिसमें तमाम बच्चों से लेकर बूढ़े तक तमाम मर्दों तक जो है वो शामिल होंगे। मुझे यकीन है कि चौक में पहुँचने तक आपके वसाइल का हाल जो है वो ज़रूर चला। मैं आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा नारा नहीं है, इनकी कोई अपनी गर्ज नहीं है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है ना आपसे वोट लेने हैं। इन वकला ने वोट तो अपनी बार से लेते हैं, उस वकला के वोट लेके ये बार के सदर मुंतखब हुए दूसरी बार, तो बस साहब भी सदर रहे, हमारे नौजवान वकला जो है इनको आपके वोटों की कोई जरूरत नहीं है। बेगर्ज बेलौस होके बगैर किसी लालच के इस मैदान में इस तपती धूप में करिए करिए जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके आपकी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, और सब जो है आवाज़ें जो है वो तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त दूंगा कि इंशाअल्लाह ताला रोशनी ज़रूर आएगी, रोशनी ज़रूर आएगी, लेकिन जब आप जो है वो भरपूर तरीके से मुजाहरा करेंगे और भरपूर तरीके से बात के इन वकला का और सदर बात का साथ देंगे, तो मुझे यकीन है आप मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जनाब अलीकुज़मान साहब एडवोकेट साहब, उन्होंने मैंने अपने हयात का आज़ाद किया। अब मैं दावत हटा दूँगा साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार तबस्सुम सादिक एडवोकेट साहब को जो अपने हयात का आज़ाद करें।